Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum viewers. Hope you are all fine and enjoying your days. Today I have come with the most important, interesting personality of all ages, we can say. One of the most favorite personality in literary society, especially in English literature, that is William Shakespeare. So today we will talk about who was Shakespeare, where was he born, and about his life and his achievements. As we all know, Shakespeare was dramatist, poet, and actor. William Shakespeare was born in the era that was known as Age of Renaissance. It was the age of Queen Elizabeth. And during his time, he was born, he was brought up in that society, and he refined himself with all the aspects of that society. Although he was not educated at any university of England, but yet produced remarkable plays for all times. As we all are familiar with him, due to his plays, he is favorite in the history. So as he was born in 1564 at Stratford-upon-Avon. That is why he is also known as Bard of Avon. He got his early education. He remained there. He went to a college for some time. Then Shakespeare had, although he didn't went to any university, but in his early age he started writing. Shakespeare got married. His wife name was Anne Hathaway. He had 3 children: Susanna, Hamnet, and Judith. Hamnet and Judith both were twins. His only son was Hamnet, who died at the age of 11. So rest of his 2 daughters, they lived, and Shakespeare enjoyed his life with them. His parents' names were John and Mary. In his early life, Shakespeare spent his childhood in Stratford-upon-Avon. Then he went to England. He spent that time there. He went there in search of some business of life. So when he went to England, he joined there Lord Chamberlain's man. That was one of the theatre there in England, and at that time plays were performed in that theatre. This was the company which Shakespeare joined in the beginning. So this was the time when he started. This was between 1585 to 1616 when he started to write. So he wrote plays at that time. Not only he wrote, but he performed his own plays in theatre. This was the theatre that was in the beginning was called Lord Chamberlain's Man, and later on it was named King's Man, and it had also a story that I will tell you later on. As Shakespeare started to perform his own plays in the theatre, his plays were liked and appreciated by the most of the people. So there was a huge crowd in the theatre to watch his performance. He was loved and appreciated by the people at that time. The plays that he started to write, in the beginning he started to write some comedies.
His most famous comedies are Midsummer Night's Dream and As You Like It. These were his most famous comedies at that time. In Shakespearean comedies, there was a particular thing in that there was not only comedy, but it was related to the real life. I would say that he had written about his age. Whatever the important features of his age were, he was depicting that in his plays. Like I must say that as it was the time of Renaissance, people had love for knowledge and learning. So Shakespeare has added all of these things in his plays. Let me tell you that what was the important thing in his comedies. कॉमेडी में कौन सी ख़ास बात थी? उसकी कॉमेडी में सबसे ख़ास बात ये थी कि उसकी शेक्सपियर की जो कॉमेडीज़ थी, एक तो वो कॉमिकल थी, उसमें वो कोई ना कोई कॉमिक कैरेक्टर ऐड करते थे, जैसे कि जेस्टर्स होते थे, जोकर्स होते थे जो कि एंटरटेन करते थे। दूसरी ख़ास बात ये थी कि शेक्सपियर के टाइम में जो फीमेल कैरेक्टर था वो भी मेल परफॉर्म करते थे, क्योंकि उस ज़माने में फ़ीमेल्स का स्टेज पे परफॉर्म करना पसंद नहीं किया जाता था। इट वाज नॉट लाइक्ड एट दैट टाइम बाय द सोसाइटी। सो मोस्ट ऑफ जो फीमेल कैरेक्टर्स थे शेक्सपियर के, वो भी मेल ने ही परफॉर्म किए। इसके अलावा शेक्सपियर के प्लेस की एक खूबी ये भी थी कि आपके प्लेस में आपने स्पेसिफ़िकली कोई ना कोई कैरेक्टर में फ्लॉ छोड़ देते थे, और जो सीन्स थे वो भी स्पेसिफ़िक होते थे, तो आपके कैरेक्टर्स को ज़्यादातर लोग एंजॉय करते थे। शेक्सपियर की जो कॉमेडीज़ थी, सबसे ज़्यादा जो पसंद की गई वो थी मिडसमर नाइट्स ड्रीम, देन एज यू लाइक इट, और बहुत सी कॉमेडीज़। शेक्सपियर ने तकरीबन 39 और 40 प्लेस लिखे, और सारे प्लेस जो थे वो ज़्यादातर आपकी सोसाइटी को, आपके उस टाइम को डिपिक्ट करते थे। उसके बाद आपने हिस्ट्रीज़ लिखी। आपकी जो हिस्ट्री थी, द हिस्ट्री ऑफ शेक्सपियर, दोज वर वेरी फेमस। उनमें ज़्यादातर हिस्टोरिकल जो प्लेस थे आपने उसमें ऐड किया, जैसे कि हेनरी IV, हेनरी VIII, रिचर्ड III, ये शेक्सपियर की हिस्ट्रीज़ थी। और हिस्ट्री में आपके जो प्लेस थे वो ख़ास उस ज़माने के, जो जैसे कि अब हेनरी VIII थे, हेनरी IV थे, वो हेनरी IV के ही उसी किंग के बारे में लिखी हुई थी, और इसी वो हिस्ट्री में वो मौजूद थी। आपके प्लेस के नाम भी उसी, टाइटल भी उसी से सेलेक्टेड थे। और इसी तरह से आपने फिर उसके बाद अपनी ट्रेजेडीज़ लिखी। आप शेक्सपियर ने जो लास्ट टाइम था अपना, उसमें ट्रेजेडीज़ लिखी, और ट्रेजेडीज़ जो थी वो सबसे ज़्यादा फेमस हुई, और मोस्ट फेमस ट्रेजेडी जो है वो है हैमलेट। इसके अलावा मैकबेथ, किंग लियर, ये शेक्सपियर की वो ट्रेजेडीज़ थी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। और ट्रेजेडीज़ में क्या ख़ास बात थी कि ये किसी फॉल ऑफ नोबल सटायर स्टेटस, किसी नोबल पर्सनालिटी की फॉल पर लिखी हुई थी। आपकी ट्रेजेडीज़ उस पर लिखी हुई हैं, और इसमें फैटल फ्लॉ, किसी न किसी फैटल फ्लॉ की वजह से वो ट्रेजेडी काज होती थी। और एक और रीज़न जो उसमें थी इन ट्रेजेडीज़ की, वो दैट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्सेस प्ले में शामिल होती थी, जिसकी वजह से वो ट्रेजेडी होती थी। और ट्रेजेडीज़ में ज़्यादातर डेथ्स होती थी, और टोन जो थी उसकी सॉम्बर थी, और ज़्यादा ये ह्यूमन नेचर पे ये ट्रेजेडीज़ जो थी वो लिखी हुई थी। ट्रेजेडीज़ के अलावा शेक्सपियर की ट्रेजिक कॉमेडीज़ हैं।
ट्रेजेडी कॉमेडीज़ वो हैं, ट्रेजिक कॉमेडीज़ वो हैं कि जिनमें ट्रेजेडी भी है और कॉमेडी भी है। इसकी एग्जांपल हमारे पास द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट शेक्सपियर का वो प्ले है कि जिसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों शामिल हैं, और ये ज़्यादातर रोमांटिक नेचर के थे। तो ये शेक्सपियर के वो प्लेस थे जो ज़्यादा पॉपुलर हुए, जिनको लोगों ने पसंद भी किया, और जो ना सिर्फ उस ज़माने में बल्कि आज भी फेमस हैं। फिर शेक्सपियर ने अपने जो प्लेस लिखे उनको ख़ुद परफॉर्म भी किया, और एज एन एक्टर भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। तो ये वो एज थी जिसमें 1585 से 92 तक फॉर सम टाइम आप राइटिंग से थोड़ा दूर रहे और आपने लिखने का काम इतना नहीं किया, लेकिन उसके बाद फ्रॉम 92 ऑनवर्ड, 92 से 1613 का वो टाइम है कि जिसमें आपने ज़्यादातर अपनी ट्रेजेडीज़ लिखी और ट्रेजिक कॉमेडीज़ लिखी, और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई। यही वो ज़माना था 1599 में जब आपने ग्लोब थिएटर को ओन कर लिया था, वो आपका अपना था ग्लोब थिएटर। और ये वो ज़माना था कि जब आपके इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी, और शेक्सपियर ने अपने प्लेस से ना सिर्फ उनके लिखने से बल्कि उनको परफॉर्म करने से बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी। उस टाइम पे आपके साथ जो दूसरे साथी थे जैसे जॉन फ्लैचर 1613 में, फिर उस ज़माने में आपने अपना लास्ट प्ले लिखा टू नोबल किंग्समैन। 1610 में ज़्यादातर शेक्सपियर अपनी पब्लिक लाइफ से रिटायर हो गए थे। आपने अपनी पब्लिक लाइफ में जैसे कि प्लेस परफॉर्म करना आपने छोड़ दिया था। तो जो आपकी ट्रेजेडीज़ थी आपने 1592 के बाद 94 से 1610 तक शेक्सपियर ने ज़्यादातर अपनी ट्रेजेडीज़ लिखी थी। फ्रॉम 93 टू 94, 93 से 94 वो टाइम था कि जब इंग्लैंड में प्लेग का टाइम था। दिस वाज द टाइम व्हेन देयर वाज अ प्लेग, जब माउस का अटैक हो चुका था, और उस टाइम पे शेक्सपियर जो थे वो थोड़ा अरसा अपने स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में रहे, और उस ज़माने में आपने अपनी पोइट्री भी लिखी। उस पोइट्री में आपकी जो मोस्ट फेमस सोनेट्स हैं 154 सोनेट्स हैं, आपने वो उस वक्त लिखी थी। और ये जो सोनेट्स थी वो बहुत प्राइवेट सोनेट्स थी, वो ज़्यादातर आप अपने लिए आप अपनी डायरी में लिखते थे। बाद में ये पब्लिश हुई, और जो आपकी बहुत फेवरेट थी, अ लवर्स कंप्लेंट, दैट वाज स्पेसिफिकली फॉर हिज ओन सेल्फ। और आपके जो सोनेट्स में जो तस्करा था जैसे कि डार्क लेडी और फेयर लेडी का, दैट वाज एट दैट टाइम शेक्सपियर हैज़ रोट दोज सोनेट्स, एंड दिस वाज द टाइम ऑफ हिज पोइट्री। इसके अलावा आपने 2 लॉन्ग पोइम्स भी लिखी हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। न सिर्फ प्लेस में बल्कि आपकी पोइट्री में भी शेक्सपियर का जो कमाल है वो आज तक कोई उसको हासिल नहीं कर सका। ही वॉज मोस्ट अप्रिशिएटेड बाय ऑल पीपल ऑफ ऑल एजेस। अगरचे आप एलिज़ाबेथन एरा के थे, लेकिन आपके बाद फिर रोमांटिक्स, और उसके बाद फिर इवन 19 और 20th सेंचुरी तक, इवन टिल टुडे, हर एक पोइट ने, हर एक राइटर ने शेक्सपियर की राइटिंग को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और आपकी राइटिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया। आप पे बहुत से क्रिटिक ने क्रिटिसिज्म किया, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिक ऑफ द टाइम, बेन जॉनसन ने आप पे लिखा, और आपकी ये लाइन बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई, नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल टाइम। उन्होंने कहा कि आप किसी एक वक्त के लिए नहीं बल्कि शेक्सपियर सब ज़मानों के लिए हैं। शेक्सपियर वो पर्सनैलिटी थी जिनकी लिखी हुई किताबें बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा उस ज़माने में पढ़ी जाती थी। आपकी प्लेस को, आपकी पोइट्री को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था। आपकी पोइट्री का एक कमाल ये था कि आपने इसमें ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल किया, आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया, जो कि उस वक्त तक पोइट्री में
शायद ही किसी ने इस्तेमाल किया हो उसका। शेक्सपियर ने अपनी तमाम ज़िंदगी लिखने पढ़ने में गुजार दी, अगरचे इतनी एज नहीं थी, 54 ईयर की एज में आपकी डेथ हुई और आपकी जो कब्र थी वो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में वहीं पर बनाई गई और उस पर आपने बड़ी इम्पॉर्टेंट लाइंस लिखी थी कि अब इस कब्र को कोई हाथ ना लगाए, कोई इसको ना खोले, कोई इसकी कुछ कब्र कुशाई ना करे, क्योंकि इसमें अब वो मदफून है। शेक्सपियर के बारे में मुख्तलिफ़ क्रिटिक्स ने मुख्तलिफ़ रिमार्क्स दिए। बेन जॉनसन के ही रिमार्क हैं कि ही वॉज द सोल ऑफ द एज, और सैमुअल जॉनसन ने कहा कि यूज्ड एक्सटेंसिव। सैमुअल जॉनसन ने आपको इतना अप्रिशिएट किया कि आपके जो कोट्स थे सबसे ज़्यादा उन्होंने अपनी राइटिंग में उनका इस्तेमाल किया। So Shakespeare is loved and appreciated in all ages, in all time, due to his writing, because he dug the essence of life. He explored the essence of life through his plays, through his poetry. So I hope you would have understood about Shakespeare, and please like, subscribe and share my channel. Thank you so much.